Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what you're unable to see and how it is going to impact your life. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is healing, pile number 2 is loyalty, pile number 3 is trust in the इनविजिबल. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट पाइल, व्हाट कार्ड यू हैव टू पिक. अगेन जो भी कार्ड आप अपने लिए पिक करोगे वो कार्ड, वो पाइल आप ही की पाइल होगी, आप ही की रीडिंग होगी. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योरसेल्फ दैट यू आर गोना चूज द राइट पाइल. और अगेन जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है एंड यू आर गोना पिक द राइट पाइल. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the deer and oat. It says healing. Let's get started with your reading. तो मेन टेरो से शुरू करेंगे. What pile number 1 is unable to see and how it will impact their life. What pile 1 don't see coming. Okay, we already have a card. We have Hermit. So some free time or kind of like you're gonna feel that freedom. You're gonna feel that I am in control of my life. I know what is happening and I am not dumb. I am in control and मेरे पास फ्रीडम है टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, पाइल 1, you will get time to get a break. You will have that peace of mind again. I feel right now things are really chaotic and you even may feel stupid at times or dumb at times. People make you feel this way. ऐसा हो सकता है पाइल 1 you're going through this humiliation वाला phase in life, grilling वाला phase in life, but the hermit is showing कि जल्दी आपका ये जो belief system बनना शुरू हो गया है, या ये कह लो कि दूसरे लोगों ने आपको इस तरीके से देखना शुरू कर दिया, ये चीज़ अब बदलने वाली है. थैंक गॉड ये टाइम अब कंप्लीट हो रहा है एंड पीपल आर गोना नोटिस दैट यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर, यू आर बिकमिंग मोर काइंड, यू आर बिकमिंग at times you are not so kind but at times you are very kind. Matlab it depends upon the situation and the person, but other people are noticing a change in you ki you don't react immediately or you respond, you don't react, and people see that you are very calm, more composed, और आपको ना कहना आ गया, like you are becoming this wise person. You are and again right now or या फिर in the very near future you are going to become like Squidward ही था ना, that character in SpongeBob who used to say कि आज मुझे लग ही रहा था मुझे काम पर नहीं आना चाहिए, आज मुझे लग ही रहा था मुझे बिस्तर से नहीं निकलना चाहिए था, देखो क्या हो गया. So like Squidward is the reality, SpongeBob is not the reality. So I'm not saying that you're becoming this grumpy old man, ऐसा नहीं है, but it shows कि you can go through in this phase where you're like the Squidward and then you're going towards this hermit mode. And with the hermit, it does show that you're in control, you're in charge of life. You have gone through a lot of BS in life, you have gone through a lot of ups and downs in life, you have gone through humiliation. Now you are mature enough to take care
उन लोगों का टेक केयर करना जो लोगों ने आपको ह्यूमिलेट कर सके. लाइक यू विल हैव गुड कम बैक्स, बट कुछ समय बाद आप वो कम बैक यानी उनको पलट के जवाब देना बंद करने वाले, बिकॉज यू विल नोटिस कि बुरे के साथ बुरा नहीं बना जा सकता. आई कैन नॉट लोअर माई स्टैंडर्ड. सो एक पेशेंस, एक एक्सेप्टेंस भी आना शुरू हो जाएगा. सो वट एवर इट इज, यू गोना नोटिस दैट लाइफ इज इन योर कंट्रोल. यू आर चूजिंग योर life decisions, you're making your decisions. Your decisions are not being controlled by anyone. You're becoming really experienced. Things are under your control. Plus you will also get time to think and ponder on a lot of things. Matlab, you will have time to understand अपनी सिचुएशन. मतलब आप अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का आपको मौका मिलेगा और फिर सोचने समझने का मौका मिलेगा. एंड यू आर गोना टेक द राइट डिसीजन. दैट वी कैन सी हियर. What pile number 1 is, okay, unable to see. So we have the Emperor card. We have the Major Arcana coming, and major very positive and very powerful cards are coming. Emperor card ये शो करता है that again you're in control, you're in charge. आपके कहने से ही चीज़ें हो रही है, आपके करने से ही चीज़ें हो रही है. कोई ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में नहीं चल रही. यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ, यू आर इन कंट्रोल. जो आपने प्लान करा वही आप प्लान को सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो. एंड योर अथॉरिटीज कैन स्टार्ट टू टेक योर साइड बिकॉज दे नोटिस दैट आप राइट डिसीजंस ले रहे हो, या आपका जो परख शक्ति है वो काफ़ी अच्छे. सो authorities are also taking your side, and the emperor shows that you are very action oriented. आप ज़्यादा overthink ना करके action ले लेते हो, और जो भी आप action लेते हो it is the right, it is you're taking that action in the right direction. Emperor shows Aries card, Emperor shows Aries sign, Hermit shows Virgo sign. Aries और Virgo का जो combination है it's very different, क्योंकि Aries is about quick forward movement, it's about that aggressive forward movement. Virgo होता है detail oriented, नुक्ताचीनी करना और nitpick करना चीज़ों को, और बड़े ध्यान सोच समझने के बाद कोई काम करना. ये दोनों साइंस का जो कॉम्बिनेशन अभी आपके लिए बन रहा है बहुत पॉजिटिव बन रहा है. मीनिंग सोच समझ के आप एकदम एक्शन ले लोगे, सोच समझ के. एंड यू आर बिकमिंग ब्यूटी विद ब्रेन्स. सो अमेजिंग, ब्यूटिफुल. एंड ये जो चेंज है ये आपके अगेन साइकोलॉजिकल चेंज होगा, और उसके बाद आपके वर्क में, अपने रिलेशनशिप्स में आपको देखना ये दिखना शुरू होगा. एंड आई फील देयर कैन बी सम स्ट्रिक्ट गुरुज, टीचर्स, मेंटोर्स इन योर लाइफ, एंड यू मे फील कि अगेन दे आर टू स्ट्रिक्ट, टू हार्डकोर विद यू, बट यू विल रियलाइज इट. मतलब अभी यू कैन बी अनएबल टू सी, बट लेटर यू विल, इन फ्यू वीक्स यू विल रियलाइज दैट दे आर राइट पीपल, दे आर प्रैक्टिकल पीपल, दे आर राइट पीपल, दे आर वाइज पीपल. You will get to know this as well. And then we have the Page of Pentacles. I mean, Page of Pentacles here is showing that you are going to get some new opportunity in career, in education. You are getting an admission in some new reputed university or college. You are going back to school, back to learning. एंड पेज ऑफ पेनिकल्स ये भी शो करता है आप में से कुछ लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. एंड यू आर अनएबल टू सी ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ, बट इन द नियर फ्यूचर वी कैन से विद इन 3 months दिस इज गोना हैपन. एंड समथिंग मोर, वी हैव The 9 of Pentacles. 9 of Pentacles shows कि आपके पास ऐसी मनी अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो कि बहुत अच्छी है. Like you will be able to earn good amount of money, and with that money you can buy your favorite clothes, your favorite branded clothes. You can buy whatever you want to buy, and it also shows you're going to start to romanticize your life. You will give time to yourself. जैसे hermit में भी ये चीज़ हमने कहा था that you will have the freedom to do whatever you want to do. So you will be able to romanticize your life. अपने आप को डेट पर लेकर जाना, बढ़िया बढ़िया रोज़ कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा खाना बनाना और खाना. So you will be able to do that. You will be able to romanticize your life. ऐसी opportunity आपके पास आएगी जिससे आप बहुत अच्छा money earn कर पाओगे. And I do feel कि जब आप higher education लेते हो या जब you polish your skills, you get a good
career opportunity, and from that career opportunity you're gaining lot of income, you have lot of money with you. Nine of Pentacles भरपूरता, संपन्नता, abundance को शो करता है monetary aspect में और emotional aspect में भी. Nine of Pentacles उस person को शो कर रहा है जिसने अकेले रहना सीख लिया है. अगर आपने अकेले रहना सीख लिया यानी आप लाइफ में जीत रहे हो. आप अकेले किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर खा सकते हो बैठकर, आपको कोई शर्म नहीं आ रही है. आप अपने वर्क प्लेस पर अकेले बैठकर खा सकते हो, आपको कोई शर्म नहीं आ रही है. एंड आप हर चीज अकेले कर पाते हो. सो विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स इट इज शोइंग दैट यू आर बिकमिंग लाइक दिस, यू आर बिकमिंग लाइक दिस. आपको अकेले जीना आ गया एंड यू आर हैप्पी लिविंग अलोन, यू आर हैप्पी इन दैट, यू हैव फाउंड योर हैप्पीनेस इन दैट. End of the deck we have the Two of Cups. Two of Cups here shows that you have also find a good friend, a friend who understands you, a friend who understands your situation, also is a good guide to you. But आपके साथ जो है they have fun, like you can talk to this friend and this friend also can talk to you. मतलब अपना दिमाग साइड पर रखकर आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो. You can have those stupid conversation, but at the same time if like you're dealing with some problem or they are dealing with some problem or they are just you guys are discussing about life, then you can of course put your brain back in its place and then you have that conversation. So you will have stupid conversation and you will have good conversation, deep conversation with this person. You are kind of making this friend या फिर जो आपकी current friendship है वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाए, डीप हो जाए. सो ये यहाँ इंडिकेशन है. आइदर यू कैन मीट समवन अभी से 2 days या 2 weeks बाद हु कैन बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, और यू ऑलरेडी हैव अ फ्रेंड, उस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप और अच्छी हो गई है. And these people, like the friend you may meet or the friend you may have, they can be from a different place. एक डिफरेंट स्टेट, एक डिफरेंट सिटी के हो सकते हैं, या फिर दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट अगेन एथनिक बैकग्राउंड कम्युनिटी. दैट विल हैपन. But both of you will feel like you are sisters from the different mothers, but you guys will feel like that you're sisters or you're brothers. So this is gonna happen. And yeah, let me pull some more cards here कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ आ रही है जो you are unable to see, and we are gonna get to know that how it will impact your life. Pile number 1. Pile number 1. I also feel कि if you were dealing with anxiety or this restlessness in your mind and body, तो वो भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है विद द एम्परर कार्ड. बिकॉज एम्परर के हाथ में ना एक एनजाइटी बॉल, कई सारे डेक्स में हम देखते हैं एक बॉल होती है जिसको अगर हम स्क्वीज करें सो इट जस्ट मेक्स अस फील a little balanced maybe, मतलब कुछ ऐसा squishy सी ऐसी बॉल होती है, and that is known as anxiety ball. It calms anxiety. So if you were dealing with this issue तो वो यहाँ पर sort out होता हुआ नज़र आ रहा है. healing का कार्ड ऑलरेडी आपने चूज़ करा, so healing यहाँ पर mental health issues and even physical health issues will heal here very soon. और वो हील इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हर चीज़ कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए. यू आर हैविंग अ गुड रूटीन, बट यहाँ पर मेजर ये हो रहा है कि आप अपने माइंड को रेस्ट करने का मौका दे पा रहे हो. आप वो चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है, और खुशी जैसी कोई दवाई नहीं है, तो ऑब्वियसली वो हीलिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक होगी. ये सब चीज़ें विद इन 3 months होती हुई नजर आ रही है. देन वी हैव द टेकिंग रिस्क कार्ड. सो इफ यू फील लाइक यू आर टेकिंग सम रिस्क इन सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वेदर इट्स मैरिज रिलेशनशिप, मैरिज ऑल्सो इज काइंड ऑफ लाइक टेकिंग अ रिस्क, बट लाइक अगेन पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, यू आर टेकिंग सम रिस्क, और उस रिस्क से आपको कोई गुड फॉर्चून यहाँ पर हो रहा है. यहाँ पर आपको अच्छा मनी आप यहाँ अर्न कर रहे हो. सो इफ़ यू फील कि आई एम गोना टेक दिस रिस्क, और या फिर मैंने ऑलरेडी एक रिस्क लिया है एंड आई एम लाइक आई डोंट नो इट्स रिजल्ट, बट जो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, इस जो आपने रिस्क लिया वो बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है. सो let go of that tension or stress. If you have taken a risk, it will be good, all will end up well. और यहाँ taking risk कार्ड ये भी शो करे, if you have this opportunity to take risk in career, so you should, or in life in general,
इफ़ यू फील कि बड़ा रिस्की चीज़ है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करो. बिकॉज अगर आप वो चीज़ नहीं करते ना, देन दिस सेंस ऑफ रिग्रेट इज गोना कम. सो डू दैट थिंग. और वो चीज़ जो है यहाँ पर अच्छा जो है वो चीज़ यहाँ अच्छी फ्लरिश होती हुई नजर आ रही है विद द एम्परर एंड विद द 9 ऑफ पेनिकल्स कार्ड. एंड यहाँ एक और चीज़, जैसे 9 ऑफ पेनिकल्स ये भी शो कर रहा है कि आपकी लाइफ नॉर्मल लोगों जैसी नहीं होएगी. आपकी लाइफ पाइल 1 अभी से 3 महीने बाद यू विल नोटिस कि आप ज़्यादातर लोगों से जो मतलब नॉर्मली जो लोग जिन चीज़ों से डील करते हैं, आप उन चीज़ों से डील करना बंद कर दोगे. यू विल समहाउ फील दैट आई हैव गॉन थ्रू दिस, अब ये मेरे लिए रिलेटेबल नहीं है. और इस वजह से 3 months फ्रॉम नाउ आप जिन लोगों से रिलेट करते थे उन लोगों से रिलेट करना बंद कर दोगे. समहाउ इवन योर यूट्यूब कंटेंट यू यूज टू वॉच, यू गोना स्टॉप वॉचिंग दैट बिकॉज यू आर अनेबल टू रिलेट विद दैट कंटेंट. और द जोक्स यू यूज टू लाफ ऑन, you are unable to laugh on those jokes anymore because they are just not so relatable. So यहाँ change of content भी नजर आ रहा है. Like the content you used to watch, you used to get, you are changing that. Plus the people you hang out with, you can also have a change in your social circle क्योंकि now you are unable to relate with them. Now your level is kind of higher than the others, normal people. So ये भी. Then we have the happiness card. We have the dolphins. Again, dolphin shows friends. So I see 2 friends here, and in the end of the deck, यहाँ पर भी we have 2 friends. So you have some, you're making a new friend, or your old friendship is becoming very strong, and you're happy with them. They are happy with you. Overall happiness life में आ रही है. जो आप डिसीजंस ले रहे हो, उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, वो पॉजिटिव है. इट गिव्स यू द हैप्पीनेस. एंड इन द एंड ऑफ द डेक वी हैव द फ्रीडम कार्ड. सो व्हाट टर्म वी यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग विद द हर्मिट? वी यूज्ड फ्रीडम टर्म, राइट? फ्रीडम शब्द हमने यूज करा था. सो हर्मिट वैसे यूजुअली फ्रीडम को काइंड इन अ वे शो करता है, पर इतना भी नहीं. हर्मिट इज अबाउट बीइंग नॉलेजेबल, being able to have a break in life, right? But in this deck, in this reading, I just felt that there is something related to freedom coming in life. You're free to do whatever you want to do. You're free to wake up at any time of the day. You're free to do your work any time of the day. You're free to make new friends. You're free to go to some restaurant, or you're free to do you're free to cook food for yourself. मतलब यू आर गोना फील दैट सेंस ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम बहुत तरह की है, एंड ऑलमोस्ट हर तरह की फ्रीडम यू आर एबल टू एंजॉय. यहाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या और इंफॉर्मेशन है पाइल 1 के लिए? Okay, we have a movement. So there can be some travel coming for you, pile 1. ड्यू टू करियर, मनी मेकिंग के लिए यू आर ट्रैवलिंग. और ये मूवमेंट कार्ड ये भी शो कर रहा है दैट जो लाइक यू वर थिंकिंग ना कि ये पर्सन मेरे से पीछे था, अब ये मेरे से आगे आ चुका है. ऑल्दो मैं भी उतना ही हार्डवर्क डाल रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, पर मेरे से ज़्यादा ये क्यों आगे बढ़ रहा है जबकि मैं पहले आई थी. बट वाई दे आर getting that promotion, or why they have this quick forward movement. तो समय सभी का आता है. उस पर्सन का अच्छा समय चल रहा था, अब आपका अच्छा समय है. सो यू विल नोटिस इन योर फ्रेंड सर्कल, और यू विल नोटिस इन योर सोशल सर्कल कि आपको 3 महीने के अंदर अभी से 3 महीने के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ज़्यादा ग्रोथ का मौका मिलेगा. एंड यू विल बी एबल टू सी कि हाँ, हर किसी का अपना एक ना समय होता है जहाँ पर वो थ्राइव करता है, जहाँ पर वो बहुत आगे बढ़ता है. तो आपका समय आ चुका है. ग्रेट. Then we have the disruption card. The routine you were going through, the challenges you were going through, वो यहाँ पर कट होते हुए नज़र आ रहे हैं. रूटीन चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, कंटेंट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है. एक जैसी आपकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल चल रही थी, करियर चल रहा था, वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है. डिसरप्शन इज़ हैपनिंग. आप एक बड़े अनऑर्थोडॉक्स वे से सोचना शुरू कर सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर सकते हो, एंड विद दैट
you're getting that happiness, you're becoming this emperor, you are getting the seat of power, you are becoming this person who is financially very stable and secure. And somehow you will also notice pile number 1 कि आपके पास ना फीमेल फ्रेंड्स या फीमेल सर्कल ज़्यादा क्रिएट होने वाला है, या फिर मेन हु आर अ बिट फेमिनिन इन नेचर, उनके साथ आपका उठना बैठना है, उनके साथ रहना आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. लाइक यू आर नॉट रियली अ पार्ट ऑफ मैस्कुलिन फ्रेंड सर्कल, यू आर मोर ऑफ अ पार्ट ऑफ फेमिनिन फ्रेंड सर्कल. सो okay, we have 3 more cards here. So we have reflection, we have consciousness, we have mystery. So with the reflection card you will notice कि जो आपने action लिए है और उसका जो reaction है वो आपके according है. पॉजिटिव आपको रिएक्शन मिलेगा अपने एक्शन का, आपकी बात का. कई बार ऐसा होता है कि हम बात अच्छी कर रहे हैं पर दूसरे ने उसको बैड वे में ले लिया, तो वो चीज़ें नहीं होगी यहाँ पर. फिर है कॉन्शियसनेस. यहाँ पर कॉन्शियसनेस बड़ी पॉजिटिव है, वृत्ति कॉन्शियसनेस बड़ी पॉजिटिव है. इस वजह से जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. तो जो वृत्ति हमारी वो कॉन्शियसनेस है वो आपकी बड़ी यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रही है और इनफैक्ट ग्रोथ की नजर आ रही है. वांट टू मेक थिंग्स वर्क आउट. एंड वृत्ति पॉजिटिव है, कॉन्शियसनेस पॉजिटिव है, तो दृष्टि जिस तरह से आप सिचुएशंस को देखते हो वो पॉजिटिव वे से देखते हो. अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो यू विल नॉट फील कि अरे ये चैलेंज है, यू विल फील है कि ये एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है. तो देखने का नजरिया यहाँ पर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है. और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. सृष्टि यानी आपकी दुनिया आपको पॉजिटिव लगनी शुरू हो जाएगी. ऐसा कहते भी है ना, दुनिया में भी ये कहावत है कि जैसे आप होते हो वैसे ही आपको दुनिया दिखती है. तो आप यहाँ बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हो, इस वजह से आपको दुनिया भी पॉजिटिव नजर आ रही है. वी हैव द मिस्ट्री कार्ड एज वेल. मिस्ट्री हेयर शोज मी कि अगर किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं था, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू टेकिंग दिस रिस्क एंड यू वर नॉट लाइक यू वर अनएबल टू सी कि इसका क्या रिएक्शन आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये मेरे लिए मिस्ट्री है. तो वो मिस्ट्री जो है यहाँ खत्म होते हुए नजर आ रही है. द थिंग्स विच यू आर फीलिंग कि अनक्लियर है, आई डोंट नो इट विल वर्क आउट और नॉट, आई डोंट नो इसका क्या फ्यूचर होगा. सो यू विल बी एबल टू सी द फ्यूचर, यू विल बी एबल टू नो द रिजल्ट वे क्विकर देन अदर पीपल. तो ये भी है. और मिस्ट्री कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपका जो लॉजिक है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है. इट इज बीइंग इंक्रीज, योर इंट्यूशन इज इंक्रीज्ड. So this is the indication for you, pile number 1. All right. So and I also feel कि आपको मौका मिलने वाला है अपने ऑफिस में और अपने मतलब जहाँ पर भी आप हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस, अपने बिजनेस में, लाइक यू विल बी एबल टू गाइड और यू विल बी एबल टू मोटिवेट द क्राउड. मतलब या फिर आप एक तरह से टेड टॉक कर रहे हो, यू आर ऑन अ स्टेज, यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म, आपके सामने माइक रखा हुआ है और आपको उस माइक में बोलना और बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे. ऐसी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है आपके लिए पाइल 1. एंड इफ यू फील लाइक विल आई बी एबल टू परफॉर्म वेल देयर, यू विल बी एबल टू परफॉर्म देयर. एंड दैट टू वेरी नाइसली. द वे यू से थिंग्स दूसरे को बड़ा इम्पैक्ट फील होता है, the way you say things. So you are becoming this motivational speaker full of positivity, full of energy, and वो transfer हो रही है positive energy दूसरों में. So बहुत अच्छा आपका कोई speech या बहुत अच्छा impression आप डालते हुए नजर आ रहे हो दूसरों पर. So yeah, this is happening for you, pile 1, in the near future. Within 3 months this whole situation is happening. And yeah, this is what you're unable to see, and this is how that thing is going to impact your life. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Astrologically dekhe Aries, Virgo, and even Gemini and Sagittarius, Capricorn. So Aries mein we have Ashwini, Bharini, Kritika. Gemini mein we have Mrigasira, Ardra, Punarvasu. फिर वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, सॉरी उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, ये नक्षत्र है वर्गो में. वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, स्वाति अकर्स इन लीब्रा. और जो कैप्रिकॉर्न साइन है उसके अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ श्रावण, वी हैव उत्तर आषाढ़, श्रावण एंड धनिष्ठा.
तो आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का एसेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट वो ज़रूर प्लेस्ड होगा इन साइंस एंड नक्षत्रास में इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D9 नवांश चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can check. You can definitely book yourself a reading from the website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in this bracelet set, you can check this bracelet set out. And I shall see you in the next reading, pile number 1. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the loyalty card, the hound and peer. Let's get started with your reading. हम main tarot से शुरू करेंगे. So what pile number 2 is unable to see, how that thing will impact their life, what pile number 2 don't see coming. Okay, we already have a card. So it says the devil. All right. Okay. Pile number 2, you need to be careful of the people you hang out with, the people you make friends, the people you make acquaintances with, the people you do business. Even your bosses, जिनसे भी आप मिल रहे हो, you need to be careful. और जिसको आप सबसे ज़्यादा भरोसे के काबिल मानते हो वो पर्सन ही आपको यहाँ पर धोखा देगा. सो यू कांट रियली, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट यू रियली कांट डिपेंड ऑन अदर पीपल. आपको आत्मनिर्भर होना ही होना पड़ेगा. दैट हैज टू हैपन. सो कहते हैं ना कि some people are like snakes. So yeah, you are in such company, so you need to be careful. And the devil also shows ki like the devil comes in disguise. So this person is really sweet in front, and you have to be careful what they are behind your back, because they can really attempt to destroy some things of yours. So you need to be really careful. You're unable to see this right now. और ये होता भी है, like this is a thing which happens कि जो लोग मुंह से सामने बड़े मीठे हैं, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है उनसे. द पीपल हु आर काइंड ऑफ रूड, स्ट्रेट टू द पॉइंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम सो मच. बट या यू हैव टू वरी अबाउट द पीपल हु आर रियली स्वीट. इतना स्वीट कि किसी को डायबिटीज़ हो जाए. सो you need to be careful about the people you hang out with. And I feel कि जैसे you chose the loyalty card, और लॉयल्टी के बिल्कुल ही ऑपोजिट डेविल कार्ड आया. अगर लॉयल्टी कार्ड चूज करें, इट शोज दैट यू आर रियली लॉयल. you're a loyal friend, you're a loyal employee, मतलब you're a loyal person, you're a loyal classmate if you're in school education. So you are very loyal, but दूसरा नहीं है, सामने वाला नहीं है. और एंड यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज ये पर्सन आपको उस समय पर धोखा दे सकता है जिस समय पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो. इस वजह से आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सो राइट नाउ द स्पिरिट इज स्ट्रांगली सेइंग दैट यू आर अनएबल टू सी द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन. बट हाँ, इंटरनली, क्योंकि डेविल और ये लॉयल्टी कार्ड यही शो कर रहा है कि आपकी इंटुइशन स्ट्रांग है. लाइक यू विल समहाउ नो दैट दिस पर्सन इज डूइंग सम शेडी बिजनेस, दे आर मे बी इनटू ड्रग्स, और दे आर डूइंग समथिंग जो ठीक नहीं है. और ये पर्सन आपकी रेपुटेशन को डाउन भी कर सकता है. दे कैन हार्म योर रेपुटेशन. सो यू मे नो दीज थिंग्स, बट यू स्टिल हैंग आउट विद दिस पर्सन बिकॉज इट जस्ट मेक्स यू फील कूलर. सो बी केयरफुल, बी केयरफुल. वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हेयर. अगर आपको लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी से कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं है. थिंग्स आर चेंजिंग. यू शुड पुट एफर्ट्स इन योर क्रिएटिव थिंग्स. वट एवर क्रिएटिव आइडियाज़ यू हैव, उसको इम्प्लीमेंट करो रियल लाइफ में, उसको क्रिएट करो. और आपको अपने क्रिएटिव चीज़ों से इनकम जनरेट हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है. अगर आप अपना ध्यान, अपनी एनर्जी अपने क्रिएटिव स्किल्स पर डालते हो, यू विल बी एबल टू अर्न फ्रॉम दैट.
एंड मे बी यू आर अनएबल टू सी दैट राइट नाउ, बट यू कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आप अपना स्किल सेट दुनिया को दिखाओ और उससे आपको अच्छा इनकम जनरेट हो. एंड इट कैन इवन हैपन कि जो आपका स्किल सेट है ना, वो आप जहाँ रहते हो वहाँ उसकी वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी, पर अगर लाइक यू गो फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर, और यू गो फ्रॉम वन सिटी टू दी अदर, और मे बी व्हेन यू गो फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर, वहाँ पर मतलब दूर जाकर आपके क्रिएटिविटी की, आपकी आर्ट की वैल्यू होगी. जहाँ पर आप हो वहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं है. Then we have the 10 of coins card. 10 of coins here shows that you're unable to see the potential in your creative things. You're unable to see the potential in you. बट जैसे 10 ऑफ कॉइन्स जो है वो बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को शो करता है, फाइनेंशियली भरपूरता है, यानी फाइनेंसेस में अबंडेंस को शो करता है. और 10 ऑफ कॉइन्स ये शो करता है कि यू वांट टू प्रोवाइड अ वेरी कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ टू योर फैमिली, टू योर पेरेंट्स, एंड आप ऐसा मनी भी अर्न करना चाहते हो कि जिससे आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स को जो है, नेक्स्ट जनरेशन्स बैठ कर खा पाए. सो there was this dialogue in some पंजाबी मूवी कि जहाँ पर वो कह रहे थे कि तू हले तक मंजे ते ही लग गए, मतलब इतनी धूप चढ़ चुकी है और तुम सो ही पड़े हो. जो तुम्हारी पिछली जनरेशन थी, दादे परदादे थे, वो कितने हार्ड वर्किंग थे, तो उन्होंने कितनी मेहनत करी. तो वो जो बच्चा लगा होता है मंजे पर, यानी कि वो सोया होता है, वो कहता है कि अगर उन्होंने इतनी मेहनत करी थी तो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कर लेनी थी, या इतनी मेहनत करनी चाहिए थी कि हम बैठकर खा पाए. So basically with the 10 of coins card here, it does show that you will have this kind of money with your creative skills, कि जिससे आप अपने पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हो और जिससे आप आने वाली जनरेशन को भी बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हो. और यू कैन इंस्पायर अदर पीपल, स्पेशली यंग पीपल, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू. ये क्रिएटिविटी, आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, या फिर अगेन किसी भी चीज़ को ब्यूटिफाई करना, पेंटिंग और म्यूज़िक, सिंगिंग, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, या फिर अगेन डांस, सम डांस फॉर्म, और इवन कराटे, मार्शल आर्ट, समथिंग उससे रिगार्डिंग है. ये आपके नॉर्मल डेस्क जॉब के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क के बारे में बात कर रहे हैं. तो उसमें यू विल सक्सीड, बट अपने होमलैंड में नहीं, अपने होमलैंड से दूर जाके एक डिफरेंट स्टेट, एक डिफरेंट सिटी या एक डिफरेंट कंट्री में यू विल गेन मनी, यू विल बी रिस्पेक्टेड एज वेल. वी हैव द किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यू विल स्टार्ट टू बिकम लाइक 3 months के बाद, या within 3 months you may start to feel कि मुझे निंदा, स्तुति, मान, अपमान, आई एम न्यूट्रल इन ऑल ऑफ द सिचुएशंस. आई एम न्यूट्रल. अगर कोई मेरी तारीफ करे थैंक यू, अगर मेरे को कोई बुरा भला भी कह रहे तो भी थैंक यू. इट डजंट अफेक्ट्स मी. और किंग ऑफ कप्स ये शो करता है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इम्यूनिटी, वो आपकी बढ़ गई. और किंग ऑफ कप्स ये भी शो करता है दैट यू आर बिकमिंग दिस you're becoming this guru, guide, advisor, counselor for the people who are not doing well, who are maybe suicidal or who are dealing with depression, anxiety. You are able to guide them well, you are able to give them a good life, you are able to give them hope again in life. आपके चार्ट में पाइल नंबर 2 जुपिटर राहु कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर एंड राहु आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जुपिटर इज इन द असेंडेंट और राहु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड है, या फिर जुपिटर राहु का कंजंक्शन है. ऑल्सो यू कैन हैव दिस कंजंक्शन जुपिटर वीनस का कंजंक्शन, या फिर वीनस इज ट्राइन फ्रॉम जुपिटर, यानी कि अगर वीनस असेंडेंट में है तो जुपिटर 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड है. तो दिस इज नोन एज जुपिटर एंड वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. तो ऐसी प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकती है. फिर जुपिटर वीनस राहु कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है पाइल नंबर 2 इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट. तो ये प्लेसमेंट्स यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है. सो एंड ऑफ द डेक में क्योंकि लाइक आई सेड जुपिटर वीनस बिकॉज दैट्स द जीवा संजीवनी होगा. सच पीपल ब्रिंग्स द डेड इन टू लाइफ, मीनिंग दैट दे कैन ब्रिंग लिटरली दे कैन ब्रिंग डेड इन टू लाइफ, और दे कैन रियली ब्रिंग होप टू पीपल हु आर डिप्रेस, हु आर लिटरली मूविंग लाइक zombies और हु आर suicidal. सो वी हैव द 9 of Wands कार्ड. इट शोज दैट वो जो एक मुश्किल समय था दैट इज एंडिंग नाउ. ह्यूमिलिएशन वाला टाइम था,
जेलसी एनवी वाला जो टाइम था वो अब जा रहा है यहाँ से, एंड एक नया डॉन, एक नई शुरुआत, एक न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट. और आप अपने वुंडेड चाइल्ड, इनर चाइल्ड को जो वुंडेड है उसको भी हील करते हुए नजर आ रहे हो. सो दैट्स द थिंग है. यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन पाइल नंबर 2 के लिए. What they are unable to see, how that thing will impact their life. Okay, so we have the courage card. So ऐसी situations आ रही है लाइफ में जो आपके अंदर courage भर रही है, और इस courage card में we are also seeing the map here. तो again some travel is happening. जो हमने अभी बात करी ना कि पाइल नंबर 2 आपकी कदर अपने होमलैंड में नहीं है, पर जब आप अपने होमलैंड से दूर जाते हो, डिफरेंट सिटी, एक डिफरेंट स्टेट में जाते हो, या फिर डिफरेंट कंट्री में जाते हो, वहाँ पर आपकी और आपके टैलेंट की कदर है, आपके स्किल की कदर है. पर उसके लिए आपको अंदर करेज भरना पड़ेगा. अपने होमलैंड से, अपने घर से निकलने के लिए ताकत चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना, करेज चाहिए. तो वो अपने अंदर आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और वो बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है. सो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो आपके अंदर होगी. Like you will be able to have the courage to move out of your homeland, and maybe right now you're unable to see कि आपके अंदर वो हिम्मत ताकत है, but जल्दी वो हिम्मत ताकत आएगी, और अंदर जो है आप उस courage को build करोगे, and you will take the then you will be able to convert your your creative talents into your career. Then we have wonders. So जो वंडर कार्ड है ये शो कर रहा है कि वंडरफुल लाइफ चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, और दूसरे लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. ये बहुत आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता. बहुत यूनिक आपका काम है, बहुत यूनिक आपका टैलेंट है. ऑल्सो विद दिस वंडर्स कार्ड इट शोज दैट यू कैन बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग एमेथिस्ट. ये वाला ही, लाइक दिस इज द स्टोन. So many of you can be very much interested in buying amethyst bracelet or amethyst, tower or amethyst, maybe ring or pendant. So again crystal में आपका interest जो है वो बढ़ सकता है. Not just amethyst but it can be any semi precious stone. So crystals में interest बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. So end of the deck में we have the freedom card. It shows कि you will have freedom to do whatever you want to do. Maybe अपने homeland में आपको freedom नहीं मिलती है, और ये कार्ड शो कर रहा है कि courage और freedom hand in hand चलती है. अगर आपके अंदर courage है तो freedom automatic है, पर अगर आप freedom चाहते हो उसके लिए courage चाहिए. अगर courage आपके अंदर है, freedom automatic है. So that's the thing as well. So you're becoming free to perform, free to do whatever you want to do in life. और वो चीज़ तब होती है जब आप अपने होमलैंड से कहीं दूर जाते हो. अपने होमलैंड में somehow you are unable to flourish. और ये डेविल एनर्जी राहु एनर्जी है. राहु एक चीटर है. तभी I told you कि someone may backstab you, और जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करो वही पर्सन दैट दे विल बैक स्टैब यू. और राहु जो है वो अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स ग्रह है, फॉरेन ग्रह है, फॉरेन लोगों को शो करता है. पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ कास्ट, नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी, उनको शो करता है. तो ऐसे लोगों से आपको मिलने का मौका मिल सकता है. वो आर नॉट फ्रॉम अ कास्ट, नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी, और दे आर फॉरेनर, यू आर मूविंग टू अ फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस. उन लोगों से आपको गेन होगा, इनकम जनरेट होगी. वी हैव द हंगर कार्ड. पाइल नंबर 2, यू हैव अ लॉट ऑफ हंगर फॉर सक्सेस. आपको छोटी सक्सेस से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, और ये भी होता होगा पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है ना, जिस चीज़ के लिए आपने बड़ी मेहनत करी है, सडनली यू कैन लूज इंटरेस्ट इन दैट एंड यू वॉन्ट टू गेट समथिंग मोर. You may want to get the next thing now. Like when you get the manager position, you may feel like I want the senior manager position. When you get the senior manager position, you will be like I want the vice president position. वो मिलने के बाद भी और like अब क्या, अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या अचीव करनी है. सो आपका ध्यान हमेशा अचीवमेंट्स पर जाता है, उधर ध्यान नहीं जाता जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया. यू वर दैट चाइल्ड जो उसके पीछे रोता था, जो उसको चीज़ नहीं मिली, और इतनी सारी ढेर जो चीज़ें मिले उसको लेकर वो खुश नहीं. यू आर दैट चाइल्ड. यू हैव अ
big appetite for your desires. You want to fulfill each and every desire. You have a lot of hunger within, and you're a very old soul, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इससे भी बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर लिया, तो ये जो अचीवमेंट्स आप करते हो वो इस वजह से आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है. हंगर कार्ड ये शो कर रहा है कि इफ़ यू आर डीलिंग विद लो मेटाबॉलिक रेट, आपको भूख जल्दी नहीं लग रही, आपको खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें अब होना शुरू हो जाएगी. मेटाबॉलिज्म यहाँ अच्छा नज़र आ रहा है इन फ्यूचर फॉर यू. And with this hunger card, things are going well in your body. So that's there. So we can see that. And then we have the rejection card. Rejection here shows कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो नए और दरवाजे खुलते हैं. Destiny has much better plan than you have created for yourself. So rejection here shows कि यहाँ पर आपको कोई rejection मिल सकता है before getting that big thing in your life. So don't be so don't start to cry about things which you haven't really achieved, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ें आपको अचीव करने का मौका लाइफ देगी, एंड वो चीज़ें मच बेटर होगी उन चीज़ों से जो आप लेना चाहते थे, मच बेटर होंगी. यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन पाइल नंबर 2 के लिए. व्हाट आर दे अनएबल टू सी एंड हाउ दैट थिंग विल इम्पैक्ट देयर लाइफ. So we have following your bliss. My soul sings with joy. Like following your bliss, following your happiness. यहाँ पर creativity की हम बात कर रहे थे, म्यूजिक की बात कर रहे थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, डांस की बात कर रहे थे, कोई भी क्रिएटिव चीज़ या किसी चीज़ को ब्यूटिफाई करना, उसकी हम बात कर रहे थे. यहाँ पर रात और दिन oh my gosh, रात और दिन का आपकी लाइफ में फ़र्क आएगा, आप ये चीज़ नोटिस कर पाओगे. आई डू फील दैट यू आर मूविंग टू अ फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत एक चेंज इन एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है. इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओ, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओ, तो द क्यूजीन, द पीपल्स मेंटालिटी एंड द वेदर, द क्या कहते हैं, संस्कृति जो वही पूरी बदली हुई होती है. सो देर इज सम चेंज इन प्लेस हैपनिंग फॉर यू पाइल 2 विच यू आर मे बी अनएबल टू सी. अभी वो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आर अनएबल टू सी, बट दैट ट्रैवल अपॉर्चुनिटी इज गोना कम एंड यू आर गोना टेक दैट, ग्रैब दैट ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, और उससे आपकी लाइफ में दिन रात का फर्क हो जाता है और आपको अपनी लाइफ सडनली बहुत 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 अच्छी लगनी शुरू हो जाती है. मज़े की लाइफ यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है फ्यूचर में, like 3 months from now. And the unicorn also shows, unicorn को कहते हैं ना कि unicorn is not real, it's not real, it's fantasy. So the things you used to feel that they are fantasy, they are not real, or other people used to say that this, please come back to reality, you're living in your fantasy world, you're living in your la la land. So वो जो चीज़ें आपको लगता था I can't achieve, I can never achieve those things, you are achieving those things, you are achieving those things. आई एम नॉट सेइंग कि अभी से 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें अचीव कर लोगे, बट 3 महीने बाद यू विल रियलाइज कि नाउ आई एम फॉलोइंग द राइट पाथ, नाउ आई एम ऑन द राइट पाथ, एंड आई कैन सी कि जो चीज़ें मुझे लगता था मैं अचीव नहीं कर पा रहा या कर पाऊंगी कभी, वो चीज़ें मैं अब अचीव कर रही हूँ, उसके रास्ते पर हूँ मैं. सो यू विल नोटिस दैट, यू विल सी दैट हैपनिंग. एंड वी हैव द emerging into grace. It says, I open my soul to grace. I open my heart to good things now. आप अपनी लाइफ की क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हो, मतलब मर के नहीं जीना, मुझे अच्छे से खुशी से जीना है, तो आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में लगे हुए हो. छोटी छोटी चीज़ें जो हमें खुशी देती है, खाना हर कोई खाता है, पर आपके खाने की प्रेजेंटेशन क्या है, रंग बिरंगा खाना है या फिर सादा सिंपल खाना है. अगर सादा सिंपल खाना भी है तो मैं उसको कैसे बेटर बना सकती हूँ. सो यू आर गोना स्टार्ट टू थिंक दैट हाउ कैन आई बेटर माई लाइफ, और फिर आपको अच्छा भी लगेगा. when you, again, this is also about romanticizing your life. You're doing that within 3 months. You're doing these things, you have started to romanticize your life. Then we have revealing radiance. It says, my light illuminates the world. You're gonna feel कि आप जब उठते हो तो लोग आपके साथ उठते हैं, वर्ल्ड आपके साथ उठता है. जब आप सोते हो तो वर्ल्ड आपके साथ सोता है. आप ये फील रियलाइज करना शुरू करोगे कि अगर मैं दुखी हूँ तो जग दुखी है, अगर मैं खुश हूँ तो जग खुश है. So you will start to feel that your thoughts, your feelings
decides the feelings of the world. मतलब अगर वही कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. अगर हम अच्छे हैं तो हमें दुनिया अच्छी लगनी शुरू हो जाती है. सो दैट थिंग इज हैपनिंग विद यू, बट यू विल नोटिस पावर ऑफ वाइब्रेशन. अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, आपकी वृत्ति बड़ी पॉजिटिव है, वृत्ति यानी हमारी आपकी कॉन्शियसनेस बहुत पॉजिटिव है, सभी के लिए शुभ भावना शुभकामनाएं. और इस वृत्ति से जो है, जब आप देखते हो सिचुएशंस को, यानी वृत्ति से दृष्टि यानी आपका देखना किसी चीज़ को, चैलेंज को भी आप ये फील करोगे दैट चैलेंज इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू गेट समथिंग इन लाइफ, टू गेट सम बिग थिंग इन लाइफ. तो आपका चेंज हो जाता है थोड़ा सिचुएशंस को देखने का नज़रिया भी. जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि यानी कि दुनिया. तो आप दुनिया भी आपको पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाती है. एंड यू विल नोटिस कि आपके वाइब्रेशन दूसरों को इफेक्ट करते हैं और उनके वाइब्रेशंस भी आपको इफेक्ट करते हैं. पर आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके नेगेटिव वाइब्रेशन को चेंज कर सकता है न्यूट्रल में या पॉजिटिव में. और you will feel that you are the fairy, you are the goddess or the god, goddess or the god नहीं, you are the fairy or the messenger of God. You're gonna feel that way क्योंकि आपका मूड दूसरों का मूड या वाइब्रेशंस को अफेक्ट करता है. And you will feel this. I hope it makes sense to you. pile number 2 जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, I hope it makes sense. सो ये यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन है. सो यू विल ऑल्सो अदर पीपल कैन ऑल्सो कम टू यू पाइल टू. वो ये कह सकते हैं कि अभी मेरा मूड अच्छा नहीं था, दिस हैपेंड दैट हैपेंड, बट आफ्टर मीटिंग यू आई एम फीलिंग रियली एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग रियली पॉजिटिव, आई फील रियली मोटिवेटेड, आई हैव दिस सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी आफ्टर मीटिंग यू. तो यू आर गिविंग द जर्म्स ऑफ positivity and happiness. Your positivity, your happiness, your smile is addictive. So ये दूसरे लोग आपको ये बात आकर कहेंगे. So yeah, this kind of change is happening within you और फिर ये दूसरों को भी दिखना शुरू होगा. So yeah, this was it. This was the reading for you. Pile number 2, this is what we are getting. Astrologically अगर हम देखें तो ऐसी के sign of Taurus, sign of Cancer, sign of Sagittarius and sign of Aquarius, Pisces, Libra भी in fact ये prominent है. तो Taurus में we have the nakshatra of Kritika and Rohini, Mrigasira. ये नक्षत्र Taurus में है. और Cancer में we have पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा. एक्वेरियस में धनिष्ठा, सतभिषाख, पूर्वा, भद्रपदा. इवन पाइसिस, तो पाइसिस में अगेन वी हैव पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो ये साइंस, ये नक्षत्र आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. पाइल नंबर 2, सन मून राइजिंग आत्माकार का सेनेंट असेंडेंट लॉर्ड या कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा इन साइन इन नक्षत्र में, इन द D1 चार्ट और इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांश चार्ट. इवन द 4th लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन द 9th और द 12th हाउस, या 5th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस और द 7th हाउस और 9th और 12th हाउस, या जो 9th लॉर्ड है इट इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस या फिर 12th हाउस, या फिर 9th लॉर्ड इज इटसेल्फ इन द 9th हाउस, या फिर 9th लॉर्ड इज इन द 7th हाउस. तो ऐसी प्लेसमेंट जो आपके चार्ट में होंगी. So yeah, that was it. This was the reading. All the best for future, my dear. Pile number 2, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in this bracelet set, you can check this bracelet set out on the website itself, and also write angel blessing in the comment section below. Do let me know how this reading resonates with you, and I shall see you in the next reading. Pile number 2, तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the trust in the invisible card. All right, pile 3, let's get started with your reading. हम मेन टैरो से ही शुरू करेंगे. What pile number?
Okay, we already have a card. Don't worry, I've shuffled this card before. So, yeah, we have Wheel of Fortune. It says, it shows the things which pile number 3 you're unable to see is that a new cycle is starting in your life and the old is ending, and you will get some gold item from your loved one, or you're buying gold for yourself. There is some vehicle coming in, and you are, maybe you or some of your, some like the people you know, they are buying some vehicle, and यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी शो कर रहा है दैट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, एंड it also shows ke you are being comfortable in your body, in your skin. You are becoming more confident in your body and skin. If you were feeling underconfidence because the way you look, तो ये situation change हो रही है. This is changing. कहते हैं कि हर किसी का समय आता है, आपका समय यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है. फाइल नंबर 3, आपका समय यहाँ बदलता हुआ नजर आ रहा है एक पॉजिटिव वे में. What pile 3 is unable to see. Okay, के बाद एक we have the messages. So we have the 5 of cups. जो चीज़ें आपको स्ट्रेस टेंशन देती थी, वो चीज़ों का स्ट्रेस टेंशन देना अब आपको ख़त्म हो चुका है, और आप पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे. और जो चीज़ें जैसे लगता था कि लाइफ में एक स्टॉर्म चल रहा है, एक तूफान आ गया, वो तूफान अब थम रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, और आप पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो. इनफैक्ट विद द 5 ऑफ कप्स कार्ड आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस भी कम हो रही है, जो कि ज़रूरी है टू गेन समथिंग इन लाइफ. क्योंकि जब हमारी खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती है तो हमें होता है कि अच्छा ये चीज़ हमें मिल गई बट वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, तो हम उस चीज़ को लेकर भी फिर खुशी नहीं मना पाते. तो समझदारी इसी में ही है कि लेट्स नॉट एक्सपेक्ट समथिंग बिग फ्रॉम आवरसेल्व्स or even from other people, because that expectation will lead to it will lead to unhappiness. Then we have the 7 of swords. 7 of swords shows lone wolf style. 7 of swords shows I don't care what other people think about me, say about me. 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. I want to do what I want to do. I want to buy what I want to buy. I want to wear what I want to wear. So you are focusing towards your happiness. You're like कि एक कहावत है ना कि अपनी देखो या फिर समथिंग, अपनी देखो तुम अपनी देखो या तेनू होर नाल की समथिंग. there is this saying, मतलब अपनी देख लो, बाकियों का बाकी संभाल लेंगे, आप अपने आप को संभाल लो. So pile 3, like I feel that you have lots and lots of expectations from yourself in the past. Maybe still you have a lot of expectations from your own self. Your parents have a lot of expectations from you, and it's kind of normal again to expect things from our children. बट जब काम करने की बारी आती है तो उन एक्सपेक्टेशंस को साइड करना ज़रूरी है, और तभी आप अच्छे से अपना 100% डाल पाओगे, तभी आप एक न्यूनेस अपने काम में लेकर आओगे. बोर हो जाते हैं कि काम करते करते, नवीनीकरण होना ज़रूरी है, न्यूनेस ज़रूरी है. एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हियर, जो व्हाट यू आर अनएबल टू सी इज दैट इट्स एक्चुअली फाइन टू it's actually fine to be inspired by other people or to copy other people for some time till you get your own flow. कहते हैं ना fake it till you make it, right? Fake it till you make it. So with the 7 of swords card you can fake it till you make it. ये हर किसी के लिए एडवाइस नहीं होती, हर समय ये एडवाइस नहीं होती, बट फॉर यू राइट नाउ पाइल 3 आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, फेक इट टिल यू मेक इट. सो जैसे जो ओल्ड एज लोग होते हैं, हम देखते हैं ना सुबह सुबह पार्क में, वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, उनको हंसी कोई ऐसा चाह नहीं रही होती, कोई खुश होने की बात नहीं है, पर जब वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, ज़बरदस्ती ही सही, पर फिर उनको एक अपने आप ही एक खुशी आनी शुरू हो जाती है. दे आर ऑल्सो at that age as well where we feel कि everything will be sorted, we will know how life is. मतलब आप अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बाहर निकल आओगे, लाइफ आपको समझ आ जाएगी,
ओल्ड एज में ऐसा होगा, बट ओल्ड एज वाले लोग आज तक फेक इट टिल यू मेक इट करते हैं. आप कोई उतने में तो पहुंचे नहीं हो. आई फील दैट यू आर यंग पीपल or you're again young at heart, so it's okay to fake it till you make it. You should do that. जो भी चीज़ आपको खुश रखती है, whatever floats your boat, do that. Because right now the situation you are वो कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव नहीं है, तो उसको पॉजिटिव बनाओ. Even though life is सौ ही चल रही है, बट फिर भी उसको अच्छा बनाओ, उसको कोशिश तो करो ना. फेक इट टिल यू मेक इट तो करो ना. एंड यू मे फील द जो प्रोग्रेस मैं लाइफ में कर रही हूँ ना के बराबर है, या फिर लिटरली आई एम मूविंग लाइक अ स्नेल वेरी स्लोली. सो डोंट वरी, प्रोग्रेस होती है, और हर किसी का समय आता है जहाँ पर वो एकदम से उसको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, एकदम से उसके प्लान्स वर्कआउट करने शुरू हो जाते हैं, और वो समय आपका आ गया. हमने शुरू में ही क्या कहा विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून पाइल नंबर 3. दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ इज कि समय बदल गया है, आपके लिए अच्छा समय आ गया है. ऑलराइट, देन वी हैव the Nine of Wands. Nine of Wands again shows that it's important to create healthy boundaries. अगर जंगल में रहते हो, जंगली जानवर है, उनसे बचाव के लिए we need healthy boundaries. We need boundaries जिनकी walls बड़ी high है, and it's okay to create that. And with the Nine of Wands, it shows कि आपको भी बहुत मेहनत लग सकती है अपने काम में, अपने overall life में आपको ऐसा फील हो कि हर रोज़ मुझे बहुत 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 मेहनत लग रही है, and there's long way ahead. I have to go long way. You may feel this way, but यहाँ पर जो है with the wheel of fortune समय बदल रहा है. आप पैदल चल रहे थे, अकेले चल रहे थे इस रास्ते पर अब आपको एक गाड़ी मिल रही है जो कि कुछ सेकंड्स में ही बहुत स्पीड पर चली जाती है. वैसी आपको गाड़ी मिल रही है और आप इजीली और क्विकली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे. ऐसी गाड़ी है ये. और नाइन ऑफ वॉन्ड शो करे यू शुड नॉट गो विद द फ्लो. यू और मे बी यू राइट नाउ यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. यू शुड नॉट गो विद द फ्लो. ये आपके लिए गाइडेंस भी है. जो प्लान दूसरों के लिए वर्क करता है, हो सकता है वो प्लान आपके लिए वर्क ना करे, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. अगेन हर किसी की डेस्टिनी अलग है, एक की लाइफ मिले ना दूसरे की लाइफ से. सो विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स you have to take the unorthodox path. You have to find your own solutions. दूसरे के solutions आपको work नहीं कर सकते. Don't compare yourself with other people. I feel these things needs to be heard by you right now. And something more. अच्छा, end of the deck में we have the card of Nine of Swords. नाइन ऑफ स्वॉर्ड शोज सिवियर कन्फ्यूजन. इट शोज कि आप रात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जो चीज़ें सच में लाइफ में नेगेटिव होने भी नहीं वाली, यू थिंक अबाउट दोज नेगेटिव थिंग्स. सो या यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट. पाइल 3, गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, करियर स्ट्रेस, फ्यूचर का स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो या लेट्स जस्ट पुल सम कार्ड्स फॉर यू. We have the influence card here. ऐसे तो बहुत सारे कार्ड है, बट इन्फ्लुएंस कार्ड पर नज़र जा चुकी है. इन्फ्लुएंस कार्ड यहाँ ये शो कर रहा है कि हाँ, यू डू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल. इवन द पीपल यू सी ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं. तो दे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस यू. If you see someone's holiday pictures on Instagram, or if you see some vlogs related to holidays, किसी और की लाइफ को आप देख रहे हो, यू स्टार्ट टू कंपेयर योर लाइफ विद देम. अंदर ही अंदर यू स्टार्ट टू कंपेयर योर लाइफ विद देम, एंड यू गेट इन्फ्लुएंस एंड यू गेट डिप्रेस कि वाई माई लाइफ इज़ नॉट लाइक देम. उनकी लाइफ अगर आपको बहुत अच्छी लगती है ना, तो उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छा बनाया है, उन्होंने एफर्ट करा इतनी अच्छी लाइफ बनाने का, और आपको भी मौका लाइफ देगी जहाँ पर आप ऐसी लाइफ क्रिएट कर पाओ. बट या विद द इन्फ्लुएंस कार्ड हियर, यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल ऑफ द पीपल यू हैंग आउट विद, क्योंकि संग का रंग लगता है. अकेले हंसने में थोड़ा जो है, जैसे अगेन द सेम एग्जाम्पल, यू गो टू द पार्क इन द मॉर्निंग, तो एक जो है ओल्ड एज पर्सन सिर्फ नहीं हंस रहा होता है, ग्रुप में वो सारे हंस रहे होते हैं. वो जो संगठन का या एक संघ का जो रंग होता है वो पॉजिटिव है उनका, तो वो चढ़ता तो अच्छा लगता है. उसी तरह आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आपका संघ क्या है. Like nowadays people are becoming introverts, so pile 3 you need to be careful of what kind of content you consume on internet,
क्योंकि वो आपका संग है आज की डेट में. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज उनकी नेगेटिव चीज़ें भी आपके अंदर आ सकती है, उनकी कमी कमजोरी आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि वॉट एवर वी थिंक we become. So if you think about what negative things the other person did, वो नेगेटिव चीज़ें अपने आप में आ सकती हैं. अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दोगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आ पाओगे. So you need to be careful of what kind of content you consume and what kind of people you hang out with. And even with the influence card, ये भी show कर रहा है, like this reading is about what you're unable to see and how that thing will impact your life. अगर like you have to be careful कि जिन लोगों के साथ आप हो, अगर उनकी कोई bad habit है तो that can influence you and that can impact you in the negative way. So आपको उनका संग थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, ये भी strong guidance है. Then we have self-interest. So you are surrounded with people, pile 3, जिनका जो थोड़ा selfish है, या जो लोग अपनी अपनी ही सोचते हैं, उनकी खुद की मजबूरी भी हो सकती है कोई. Whatever it is, pile 3, you need to be careful of what people you hang out with, because उनकी जो है मतलब वो अपनी अपनी देख रहे हैं. आप शायद ऐसे पर्सन हो जो सभी की देख रहे हो, सभी का सोच रहे हो, पर जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो वो लोग सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं. और कहीं ना कहीं आपकी वांट्स और नीड्स उनकी वांट्स और नीड से अलग है. आप ये क्वेश्चन करना अपने साथ वाले लोगों से, क्लासमेट से या फ्रेंड से, क्या आपका क्या गोल है लाइफ में, आप कैसा अपना फ्यूचर देखते हो. यू विल नोटिस जब वो अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे आपसे, आपको बता रहेंगे दे वांट टू डू दैट, दे वांट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, दे वांट टू डू दिस एंड दैट. आप ये रियलाइज करोगे कि अरे मैं बहुत डिफरेंट सोचती हूँ इनसे, या सोचता हूँ इनसे, मेरे डिफरेंट लाइफ के गोल्स हैं. एंड तभी ये जो मुझे लोग सोल्यूशंस देते हैं, ये जो इनकी एडवाइस है, कभी मेरी लाइफ में फिट ही नहीं बैठी, क्योंकि इनका गोल अलग है, मेरा गोल अलग है, और इनका बिलीफ सिस्टम मेरे बिलीफ सिस्टम से बहुत डिफरेंट है. दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट विद मी, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट इन माई लाइफ. So you again need to be careful what people you hang out with. और with the self-interest card, आपको यहाँ पर अब गाइडेंस है कि आपको अपने आप को पहले रखना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. So maybe you're unable to see how other people are, how what kind of nature they have, what kind of interests they have, what kind of future they want. You don't know it. बट जल्दी ही आपको दिखना शुरू होगा what kind of people you are hanging out with and what the motive is. और फिर you will realize कि अरे ये बहुत different है मुझसे, and you would like to get separated from them as well. You would like to meet new people then. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द नेचर कार्ड. नेचर कार्ड यहाँ ये शो करे अगेन आपका नेचर डिफरेंट है. ये जो इतने सारे ग्रुप में क्रोज बैठे, इनका नेचर काइंड ऑफ सिमिलर है, पर ये जो क्रो अकेले इसका डिफरेंट है इन इस ग्रुप से. तो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सम ग्रुप, पाइल 3, मे बी दैट पार्ट दैट ग्रुप इज नॉट गुड फॉर यू. क्यों? ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, गलत है, ओके, वो एक सेपरेट इशू है, बट ये चीज़ है कि आप उनसे नहीं मिलते हो, आपका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, आपके गोल्स डिफरेंट है, उनकी अपब्रिंगिंग और आपकी अपब्रिंगिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सो विद द नेचर कार्ड यू में फील कि मेरा नेचर बड़ा वियर्ड है, ख़राब है, शायद इन लोगों का बड़ा सुपीरियर नेचर है. यू मे स्टार्ट टू डीमोटिवेट योर सेल्फ इन दैट वे. अपने आप को गिराना आप शुरू कर दो, अपनी नज़रों में खुद गिर जाओ. बट द रियल थिंग इज कि यू आर नॉट लाइक देम. दैट्स इट. यू विल मीट योर ट्राइब, पाइल नंबर 3, फॉर श्योर. बट आपको ये समझ आने लगेगी दैट आई कांट बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और दिस कंपनी एनी मोर, बिकॉज आई कांट लिव हियर, क्योंकि मेरे जैसे नहीं है, ये मेरे जैसे नहीं है. सो नेचर में फ़र्क है. एंड देन समथिंग एल्स, सम मोर इन्फो pile number 3 के लिए. What pile number 3 is unable to see right now and how that thing will impact their life. और सच में like these people, आप ये लोग आपको बलि का बकरा भी बना देंगे. At one point they will do that. So you need to be careful. You need to be careful.
we have the lizard and the pitcher plant. It says stagnation. So you again have to understand कि जिस ग्रुप में आप हो, जिस ग्रुप का पार्ट बनते हो, उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती, स्टेगनेंट रहेगी ग्रोथ, वो होगी नहीं. सो यू हैव टू चेंज योर कंपनी. दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. एंड आई ऑल्सो फील विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द स्टेगनेशन कार्ड, जो चीज़ें रुकी हुई थी, स्टेगनेंट थी, वो अब फॉरवर्ड मूव करना शुरू करेगी, क्योंकि आपका दिमाग चलना शुरू होगा. दिमाग के जो घोड़े हैं वो बैठे हुए थे, वो बैठे क्या, वो रेस्ट में थे, अब वो चल पड़े हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की वजह से. एक नया साइकिल लाइफ में शुरू हुआ है. एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, और दूसरा पर्सन आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा, आपका खुद का दिमाग चल रहा है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा. Then we have the crow and the dogwood. We have intelligence. Crows are actually very intelligent birds. They are very intelligent. So जैसे एक क्रो की ये भी बात होती है कि जो क्रो होता है, अगर कोई इंसान उसको तंग कर रहा है तो वो क्रो वहाँ से भाग जाएगा, और वो जो दूसरे क्रोज है ना, उन सभी को उस इंसान के बारे में बताएगा जिसने इसको तंग करा. तभी आप ये देख लो ना, किसी भी कौवे को कुछ कह दो, मार दो, उसको तंग कर दो, तो कई सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं. तो दिस हैपेंस. वो क्योंकि वो बता देता है क्रो कि ऐसा ऐसा इसने मेरे साथ करा, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, तुम मेरी मदद करो. सो एंड यू विल ऑल्सो नोटिस दिस इन द पीपल, विद द पीपल यू आर राइट नाउ विद पाइल 3, कि मतलब एक पर्सन को आपने, कहाँ गया वो डेक, मतलब ये जो है ना, एक पर्सन को अगर आपने इस ग्रुप में छेड़ दिया क्या, मतलब कुछ कह दिया, रॉन्ग भी नहीं कहा, राइट ही कहा, कह दिया, तो ये सारे कौवे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको तंग करने आ जाएंगे. तो यानी आपके ग्रुप में अगर आप किसी को कुछ कह दो, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर यू से, कई सारे लोग उस पर्सन को डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे और आपको ऑफेंड करना शुरू करेंगे, तंग करना शुरू करेंगे. So again, you need to be really careful about these people, because these people are really intelligent, they are cunning. And with the intelligence, I told you, आपका खुद का दिमाग चलने लगेगा with the wheel of fortune card. आपने एक नया साइकिल अपनी लाइफ में शुरू कर लिया है, ये जल्द ही करने वाले हो, whatever it is, आपकी खुद की इंटेलिजेंस अब यहाँ वर्क करने लगेगी. दूसरा हमें कभी नहीं सता सकता, कभी तंग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं. वो हम होते हैं जो उसको पावर देते हैं कि हमें तंग करो. सो आपकी खुद की इंटेलिजेंस अब यहाँ वर्क करने लगेगी, और आप अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से फिर बचा पाओगे, ज़रूर बचा पाओगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए, what they are unable to see right now. So we have protection. You're not alone, pile number 3. ये इन लोगों ने किसी और को भी सताया है, वो पर्सन बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, and you and them become good friends. That can happen, but always you will see कि protection will be there. प्रोटेक्शन जो है समझ के तौर पर भी आ सकती है, भगवान की मदद जो है, प्रोटेक्शन जो है, वो समझ के तौर पर भी होती है, नॉलेज के तौर पर भी होती है. कहते हैं ना, जो गॉड है इज नॉलेजफुल, नॉलेजेबल है, लॉजिकल है भगवान, इलॉजिकल नहीं है. भगवान आता है तो दिव्य बुद्धि देता है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है. और कहते हैं ना, भगवान जब आए थे वो अकल बांट रहे थे, तो तुम कहाँ थे, ऐसे कहते हैं ना. तो भगवान अकल ही बांटता है सबसे पहले जब आता है, दिव्य बुद्धि देता है, बुद्धि का ताला खोलता है. तो समहाउ आपके लिए भी डिवाइन नॉलेज जो है वो आपकी तरफ आएगी. डिवाइन नॉलेज एक पर्सन के थ्रू आ सकती है, किसी बुक के थ्रू आ सकती है, अगेन किसी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के थ्रू आ सकती है. मतलब कहीं ना कहीं से कुछ डिवाइन नॉलेज आपकी तरफ आएगी जो आपको प्रोटेक्ट कर पाएगी इन बैड सिचुएशंस से. ऑल राइट, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो या एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें यहाँ पर, तो वी हैव the sign of Leo. We have the sign of Gemini, Leo or Scorpio, and even
अच्छा लिब्रा मैंने बोल दिया है क्या, लाइक जेमिनाई, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये साइंस जो है प्रोमिनेंट होंगे आपके चार्ट में. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. फिर विशाखा स्पिल करता है. स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा. एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्वा, भाद्रपदा. So I also feel someone in authority, someone who is your authority, can take the advantage of being the boss or being the authority or being the teacher or being the professor and can take advantage of you or can humiliate you. So don't let that happen. Don't let that humiliation go inside you. These kind of things, happens. दुनिया में ये चीज़ें होती है और मैंने भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है ये चीज़. अगर आप अपना शांति से भी काम कर रहे होगे ना, तो जो पावर में है वो, अगर उसके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको छोड़ेगा नहीं. वो आपको ह्यूमिलिएट करेगा, वो आपको ऐसे शब्द बोलेगा जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, बट आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं तो फिर एक तरह से वो सोचता है सामने वाला कि नहीं ये डिज़र्व करता है. तो लाइक there can be people who are high up in some corporation, high up in the government, or bosses, professors, teachers, क्योंकि early on teachers या professors हमारी life में authority होते हैं. So उनके through humiliation. Again, even in-laws are also kind of authorities in our life. खामखा की authority. तो कहते हैं ना, तुम कौन जी, मैं खामखा. So like those kind of authorities as well can humiliate you, but don't let that humiliation go inside of you. Don't let them humiliate you. You can't really stop them at times, पर उस humiliation को अपने अंदर मत जाने दो. उसको बाहर से ही झाड़ दो in the sense कि सुना और एक कान से सुना और दूसरे से निकाला. So yeah, that's the indication, that's the guidance for you. And also do let me again, जो मैंने साइंस जो आपको नक्षत्रस बताए उनमें आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड जो है वो ज़रूर प्लेस होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट में या फिर D9 नवामशा चार्ट में. कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे इन साइन इन नक्षत्रस में. एंड ऑल्सो अगेन लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in this bracelet set, you can check this bracelet set out on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.